A very good afternoon to all my dear HS second year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. So today I will explain you, once again I'll explain you the difference and relation between deduction and induction. ठीक है. So let us start with the difference. मैंने डिडक्शन और इंडक्शन दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखा है, जिसके हेल्प से मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है. सो फॉर डिडक्शन द एग्जाम्पल इज ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल किंग्स आर मैन, ऑल किंग्स आर मॉर्टल. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिडक्शन. For induction, Ali is mortal, Ram is mortal, John is mortal, therefore all men are mortal. This is the example of induction. Now, सबसे पहला point of difference between deduction and induction is that in deduction, the conclusion, okay, before starting, let me tell you, इसमें these are the premises and this is the conclusion. In this example, all men are mortal, all kings are man are the premises, and all kings are mortal is the conclusion. क्योंकि conclusion हम लोग derive करते हैं premises से. ठीक है. Now in the second example, Ali is mortal, Ram is mortal, John is mortal. All three are the premises. And from this premises we derive the conclusion that all men are mortal. ठीक है. समझ में आया? Means these are the premises, this is called the conclusion. Okay. Now next, in deduction the conclusion is always less general than the premises. जो deduction है उसमें जो हम लोग conclusion निकालते हैं वो premises से हमेशा less general होता है. Okay. Now what is less general? See, all men are mortal, all kings are mortal. So कौन सा ज़्यादा general है? Obviously the premise all men are mortal ज़्यादा general है, because it is talking about all the mans of the universe. So it is more general. और जो कंक्लूजन है ऑल किंग्स आर मॉर्टल, ये लेस जनरल है, क्योंकि इट इज़ टॉकिंग ओनली अबाउट सम पार्ट ऑफ मैन हु आर किंग्स. ओके. इसका मतलब ये हुआ कि डिडक्शन में जो कंक्लूजन हम लोग डिराइव करते हैं वो प्रेमिसेस से लेस जनरल होता है. ठीक है. पर इंडक्शन में जो हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं वो हमेशा मोर जनरल होता है प्रेमिसेस से. फॉर एग्जाम्पल, अली इज मॉर्टल पार्टिकुलर, राम इज मॉर्टल पार्टिकुलर, जॉन इज मॉर्टल पार्टिकुलर. सो इन सब पार्टिकुलर प्रेमिसेस से हम लोगों ने निकाला एक जनरल कंक्लूजन, ऑल मैन आर मॉर्टल. ओके. सो द कंक्लूजन इज ऑलवेज मोर जनरल देन द प्रेमिसेस. Okay, this is the first difference between deduction and induction. What is the first difference? In deduction, the conclusion is always less general than the premises, and in induction, the conclusion is always more general than the premises. Fine. Now let us go to the second difference. In deduction, the conclusion always follows from the premises. डिडक्शन में जो कंक्लूजन निकलेगा वो हमेशा प्रेमिसेस से फॉलो होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल किंग्स आर मैन, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर मॉर्टल, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये करेक्ट होगा? नहीं, ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डॉग्स आर नॉट रिटन इन द प्रेमिसेस. इसीलिए डिडक्शन में हमेशा कंक्लूजन जो निकलता है वो प्रेमिसेस से ही निकलता है, बाहर से कंक्लूजन नहीं ले सकते हैं. बट इंडक्शन में, ओके, इंडक्शन में जो प्रेमिसेस है दे आर नॉट सफिशिएंट टू गिव अस द कंक्लूजन. इट मे गो बियॉन्ड द प्रेमिसेस ऑल्सो. द कंक्लूजन मे गो बियॉन्ड द प्रेमिसेस ऑल्सो, क्योंकि हम लोग सिर्फ पार्टिकुलर केसेस ऑब्जर्व करते हैं इंडक्शन में.
ओके, सो इट इज़ यूनिवर्सली। जब यूनिवर्सली हम लोग बात करेंगे तो ये चीज़ बहुत बड़ा बन जाता है। ओके, इसीलिए इन इंडक्शन द कंक्लूजन में गो बियॉन्ड द प्रेमिसेस ऑल्सो। Okay, so this is the second difference between deduction and induction. In deduction, the conclusion should be derived from the premises, and in induction, the conclusion may go beyond the premises. ठीक है, this is the second difference. Now the third difference is that in deduction, the premises are assumed to be true. Deduction में जो premises है उसको हम सच मान के चलते हैं। सच है कि नहीं है वो दूसरा बात है, बट डिडक्शन में हमेशा प्रेमिसेस को हम लोग सच मान के चलते हैं। दे आर अज्यूम टू बी ट्रू। बट इन इंडक्शन द प्रेमिसेस आर डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। बट इंडक्शन में जो प्रेमिसेस है वो निकलता है ऑब्जर्वेशन से। ओके, दिस इज द थर्ड डिफरेंस। डिडक्शन का प्रेमिसेस आर अज्यूम टू बी ट्रू एंड इंडक्शन का प्रेमिसेस आर डिराइव फ्रॉम observation. Clear? Now the fourth difference is that deduction should be only formally true, but induction should be both formally as well as materially true. Okay, deduction जो है वो सिर्फ formally true होने से हुआ। Okay, means it should be free from contradiction. That's it. बट जो इंडक्शन है इट शुड बी बोथ फॉर्मली एज वेल एज मैटेरियली ट्रू। इट शुड बी फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रोडिक्शन एज वेल एज इट शुड बी मैचिंग विद द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल ऑल मैन आर मॉर्टल, ये बोथ फॉर्मली एज वेल एज मैटेरियली ट्रू है। फॉर्मली ट्रू है क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, और मैटेरियली ट्रू है बिकॉज इट इज़ मैचिंग विद द वर्ल्ड। इट इज़ अ फैक्ट दैट ऑल मैन आर मॉर्टल, इट इज़ अ फैक्ट, right? So this is the fourth difference between deduction and induction. Deduction is only formally true or aims at only formal truth, and induction aims both at formal as well as materially true. Clear? This is the difference between deduction and induction. So let us go to the relation between deduction and induction. So there are three relations between deduction and induction. सबसे पहला relation ये है कि बोथ डिडक्शन एंड इंडक्शन आर इन्फरेंस। ओके, बोथ आर इन्फरेंस। इन्फरेंस क्या है, याद है आप लोगों को, क्लास 11 में पढ़ा था आप लोगों ने। इन्फरेंस मतलब अनुमान लगाना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना फ्रॉम आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस। सो ये जो डिडक्शन और इंडक्शन है दोनों ही इन्फरेंस है। दिस इज़ वन रिलेशन। ओके, दे आर नॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फरेंस। ओके, ये दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फरेंस नहीं है, ये एक ही तरह के इन्फरेंस है, बट ओनली डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फरेंस। ओके, दे आर नॉट टू काइंड्स ऑफ इन्फरेंस बट ओनली टू एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फरेंस। जैसे किसी कॉइन का दो साइड होता है, इसी तरह ये दोनों भी इन्फरेंस के दो साइड बोल सकते हैं। ओके, क्यों दो काइंड्स नहीं है बट दो एस्पेक्ट्स है? क्योंकि दोनों का काम जो है एक ही है, पार्टिकुलर को यूनिवर्सल से जोड़ना या फिर पार्टिकुलर से जनरल में जंप करना, दोनों का काम सेम है। ओके, हाउ पार्टिकुलर इज रिलेटेड टू द यूनिवर्सल, दोनों का एम इज टू शो हाउ पार्टिकुलर इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल। इसीलिए दे आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम इन्फरेंस। दिस इज द सेकेंड रिलेशन। नाउ द थर्ड रिलेशन, they differ only in their starting point, not principles. ये दोनों जो डिडक्शन इंडक्शन है अपने स्टार्टिंग पॉइंट में डिफर करते हैं, बिकॉज एक प्रेमिसेस ज़्यादा जनरल है और कंक्लूजन कम जनरल, एक में प्रेमिसेस कम जनरल है, कंक्लूजन ज़्यादा जनरल। सो स्टार्टिंग पॉइंट में दे डिफर, बट अल्टीमेटली इन लोगों का, इनका जो रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स है दोनों सेम है। ठीक है, क्लियर? सो देयर आर थ्री रिलेशन बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन। सबसे पहला, दोनों इन्फरेंस है। दूसरा, दे आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम इन्फरेंस बिकॉज उन लोगों का एम सेम है, दैट इज़ टू जॉइन द पार्टिकुलर विद द यूनिवर्सल और टू रिलेट द पार्टिकुलर विद द जनरल, दोनों का एम सेम है। और तीसरा, ये दोनों जो डिडक्शन और इंडक्शन है
दे मे डिफर इन देयर स्टार्टिंग पॉइंट, बट उन लोगों का प्रिंसिपल्स जो है वो सेम है। ठीक है, आई होप द रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी। ओके, हैव ए नाइस डे।